Hello, good morning, students. The second part of the chapter number 2, Nelson Mandela from First Flight. As we know, Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. The inauguration of his ceremony took place in the Union Building Amphitheatre in Pretoria today. Open your book on page number 19. On the day of the inauguration, I was overwhelmed with the sense of history. In first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences. देखो, इनॉग्रेशन के दिन मैं बहुत ओवर एक्साइटेड था, जैसा कि नेल्सन मंडेला बता रहे हैं, और फर्स्ट डिकेड यानी कि 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में अ फ्यू इयर्स आफ्टर, कुछ सालों पहले जो एंग्लो बोयर वॉर हुई थी, यानी कि इस वॉर के बाद में वाइट स्किन पीपल जो थे साउथ अफ्रीका के, उन्होंने सारे मतभेद भुलाकर यानी कि सारे डिस्प्यूट्स ख़त्म कर दिए थे एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल्स ऑफ देयर ओन लैंड. तो अब वाइट स्किन्ड पीपल का पूरा राज वहाँ पे आ गया एंड दे डोमिनेटेड अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल of South Africa. The structure they created formed the basis of one of the harshest, most humane societies and world has ever known. Means the structure जो formation थी, the formation they created, who created the white people, formed the basis of one of the harshest means most stern and rough, most inhumane means unkind societies were established by the white people, and societies the world has ever known, जो वर्ल्ड ने कभी जाना ही नहीं, ऐसी सोसाइटी वहाँ वो एस्टेब्लिश की गई. नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, एक 8 डिकेड के एक मैन के लिए ये नाउ इन द लास्ट डिकेड, अब लास्ट डिकेड 20th सेंचुरी के, और माय ओन 8th डिकेड, मेरा जो ये 8वां डिकेड है, यानी कि 8वां दशक है ये एक मैन होने के नाते. नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी एंड माय ओन 8th डिकेड एज अ मैन, एक आदमी होने के नाते मेरा जो 8वां डिकेड है, और पिछले डिकेड जो 20th सेंचुरी का जो लास्ट डिकेड था, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न, वो सिस्टम बदल गया, मतलब चेंज हो गया, फिनिश हो गया फॉर एवर, हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज्ड द राइट्स एंड फ्रीडम्स of all people regardless of the color of their skin. The new जो system was enforced after that old system of cruelty and क्या कहते हैं, टायरनी, क्रुएल्टी और टायरनी का जो सिस्टम वहाँ पे रूल होता था, उसके गोरे discrimination with the black skinned people in that system was lying there, but now it has totally overturned. That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people, means that day of freedom,
the day of freedom and contentment and relax has come due to the sacrifices of thousands of his people for their freedom. People whose suffering and courage can never be counted or repaid. Their sufferings and their courage can never be underestimated and can never be compared with their sacrifices are uncomparable. I felt that day as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots. Patriots कहते हैं जो देशभक्त होते हैं उनको, तो patriots who had gone before me, यानी जैसा कि मैं पहले भी महसूस करता आया हूँ, मैंने उस दिन महसूस किया कि मैं केवल उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों का जो योगफल या जो उनका कॉपरेशन था, जो मुझसे पहले जा चुके थे, उस लंबी और उत्कृष्ट श्रृंखला का अंत हो गया. ओके, रॉट मीन्स अचीव्ड. अब जो उन्होंने अचीव किया, दैट वाज कॉल्ड रॉट. So it produced the Oliver Tombos, the Walter Sissulus, the Chief Luthulis, the Yusuf Dadous, the Bram Fishers and Robert Subukus of our time. Okay, man of such extraordinary courage. These persons were very courageous and full of wisdom and generosity that their like may never be known again. The persons like them can never be born in this world again. Those persons are very unique person and strange. They had done a lot for their country. Perhaps it requires such depths of operation to create such heights of character. यानी जो मतलब संभवतः ऐसे ऊंचे, यानी कि इतनी हाई पर्सनैलिटी वाले लोग, उनके लिए ऐसी ही घोर यातना की आवश्यकता होती है ना. छोटी मोटी जो ऑपरेशन यानी कि टॉर्चर, ऑपरेशन मीन्स टॉर्चर, छोटे मोटे टॉर्चर तो उनको जो है फ़र्क ही नहीं पड़ता. माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स एंड लाई बीनीथ इट्स सॉइल. मेरा कंट्री मिनरल्स मीन्स मेटल्स टेकन आउट फ्रॉम द अर्थ, और जेम्स मीन डायमंड्स, यानी कि मिनरल्स और जेम्स से भरा है और ये ज़मीन में है. बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपल. बट मैं जानता हूँ कि इससे भी ज़्यादा बड़ी वेल्थ क्या है? प्रेशियस वेल्थ, मोर प्रेशियस वेल्थ इज़ आवर पीपल. सोने चांदी डायमंड्स मिनरल्स तो ये तो होते ही हैं किसी भी कंट्री की वेल्थ, बट उसके पीपल उससे ज़्यादा वैल्यूबल होते हैं. फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स. और वो फाइन होते हैं और सच्चे होते हैं, यानी कि शुद्ध डायमंड से भी. इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स, कॉमरेड्स मीन्स कंपेनियंस. इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स in the struggle that I learned the meaning of courage. संघर्ष के इन्हीं साथियों से मैंने साहस का मतलब जाना. he is telling this thing that he knew about the courage from these comrades, from these freedom fighters. Time and again I have
seen men and women risk and give their lives for an idea. By the passage of time, men and women have been giving their lives, and they have been falling themselves in the risk. And I have seen men stand up to attacks and torture without breaking. I have seen men, मैंने लोगों को देखा है, आदमियों को बिना ब्रेक के, विदाउट ब्रेक टॉर्चर करते हुए और अटैक करते हुए. ऐसा टायरनी का ज़माना, यानी कि क्रूअल्टी का टाइम ऑफ क्रूअल्टी मैंने देखा है, वो बता रहे हैं. शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड resilience means the ability to deal with any kind of hardship and recover from its effect. यानी कि वो लोग जो ये एबिलिटी रखते थे कि किसी भी तरह की मेहनत हो, कितनी कठिन परिश्रम करना पड़े, लेकिन वो पीछे नहीं हटते थे. एंड डिफाइज द इमेजिनेशन. आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर. मैंने जाना कि करेज जो होता है वो एब्सेंस ऑफ फियर नहीं था, यानी कि डर का एब्सेंस है ना. यानी कि जो फियर का एब्सेंस, यानी कि करेज का मतलब ये नहीं कि उनके अंदर डर ना हो. डरते तो थे वो, बट करेजियस थे वो. बट द ट्रायम्फ ओवर इट, लेकिन इसी वजह से ही ट्रायम्फ और विजय मिलती है. द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, बट ही हु कंकर्स दैट फियर. ब्रेव मैन वो नहीं है जो डरे, लेकिन ब्रेव मैन वो है जो उसके ऊपर जीत हासिल करे. कॉन्कर्स मीन्स जीत हासिल. नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन एंड background or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes from naturally to the human heart than its opposite. कोई भी दूसरा कोई no one is born hating, कोई भी नफ़रत लेके पैदा नहीं होता है, क्योंकि यानी कि स्किन और कलर की वजह से और उसके बैकग्राउंड की वजह से किसी से नफ़रत की जाए, ऐसा कोई नहीं होता है. अगर हमने हेट करना सीखा है तो हमें लव करना भी हम सीख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है. इवन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन पर्सन, इवन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see the glimmer of humanity. यानी देखिए, यहाँ तक कि कैद के समय के सबसे गंभीर समय में जब मेरे साथियों को और मुझे यातना सहन करने की सीमा तक यातना दी गई थी, उस समय भी मैंने पहरादारों में से एक पहरेदार, देखो, नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन. mean no, hate is not from birth. Hate comes after taking birth on the earth, and when we involve ourselves in a taught, they can be taught to love. अगर वो हेट करना सीखना ही चाहिए तो उनको लव करना भी सीखना ही चाहिए. फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट. इसके अपोजिट में लव बल्कि ज़्यादा ह्यूमन हार्ट की डेप्थ में से, गहराइयों में से आता है. इवन इन ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, even the grimmest times of prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of
humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me to and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. यानी जब मेरे साथियों और मुझे यातना सहन करने की उस हद तक यातना दी गई, उस समय भी मैंने पहरेदारों में से एक पहरेदार में संभवतः कुछ पल के लिए इंसानियत की उसमें झलक देखी थी, लेकिन मुझे विश्वास दिलाने के और अपने संघर्ष को जारी रखने के लिए ये काफ़ी था। मनुष्य की अच्छाई वो ज्वाला है, यानी कि मनुष्य की जो गुडनेस होती है, द गुडनेस ऑफ अ फ्लेम, यानी कि मनुष्य की अच्छाई वो ज्वाला है जिसे छिपाया जा सकता है लेकिन नेवर पुट ऑफ, कभी भी एक्सटिंग्विश नहीं किया जा सकता। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। द नेक्स्ट पार्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बी सेफ एंड बी केयरफुल। गॉड ब्लेस यू।